गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। सो वी हैव लर्नड कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल oxides. By metal oxide we mean that it is a combination of a metal and oxygen. और जो ये metal oxides होते हैं they are basic in nature. When metal reacts with oxygen they form basic metallic oxide. Example, when magnesium reacts with oxygen it forms magnesium oxide which is a basic oxide. So for checking कि whether the oxide formed is basic or acidic हम उसका litmus test कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक aqueous solution प्रिपेयर करना पड़ेगा. So what will we do? जो magnesium oxide प्रिपेयर हुआ है हम उसको water के अंदर ऐड करेंगे which form magnesium hydroxide solution. So now we'll take some drops of this solution and add it to the litmus papers, both red and blue. If this solution turns red litmus to blue, then this is a basic oxide which occurs in the case of magnesium. So from this we get to know that magnesium oxide is a basic oxide, which shows that metal reacts with oxygen to form basic metallic oxide. Whereas जो non metals हैं they react with oxygen to form non metallic oxide which are generally acidic in nature. Example, sulfur. Sulfur is a non-metal which reacts with oxygen to form sulfur dioxide which is acidic in nature. For checking whether the sulfur dioxide formed is acidic in nature, we'll perform a litmus test. For this we'll make the aqueous solution, but इस केस में हमें क्या ध्यान देना होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है that does not leave the container because it is a gas. So when sulfur dioxide reacts with water it forms sulfurous acid H2SO3. So हम क्या करेंगे, ये जो solution प्रिपेयर हुआ है इसकी कुछ ड्रॉप्स हम लिटमस पेपर पर डालेंगे. So we'll see that blue litmus turns red, which means that solution is acidic. And hence जो sulfur dioxide है that is also acidic in nature. And in some cases the non-metals react with oxygen to form a neutral non-metallic oxide, as in the case of hydrogen. Hydrogen is a non-metal and it reacts with oxygen to form water, and which is neutral. तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद वाटर. दैट मीन्स नाउ विल लर्न कि जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद मेटल्स, द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल्स का जो रिएक्शन है विद वाटर वो किस पर डिपेंड करता है, जो मेटल है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर. इफ दैट मेटल इज हाईली रिएक्टिव देन इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. अगर वो मेटल जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है तो कई केसेस में वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. एंड कई ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है. एंड देयर आर ऑल्सो सम मेटल्स जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर से, नीदर कोल्ड वाटर नॉर हॉट वाटर एंड नॉर स्टीम. That means they are unreactive. So starting with the sodium metal. Sodium is a very highly reactive metal. It even reacts with cold water. Sodium reacts with water with a high intensity. It catches fire when added to water. Because क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, let's see. When sodium reacts with water, sodium hydroxide is formed with the evolution of हाइड्रोजन गैस. दैट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एंड जो बेस बनता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH. सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. वाटर इज H2O. इट रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज H2. बिकॉज जो सोडियम है उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है वाटर के साथ, इसलिए यही रीज़न है कि हम सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं. बिकॉज इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन वाटर और इट इज़ एक्सपोज टू एयर it catches fire.
इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स सी। फॉर दिस वी विल नीड सोडियम मेटल एंड वाटर। सबसे पहले हम बीकर के अंदर वाटर को ऐड करेंगे एंड सोडियम मेटल एक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए हम इसको एक नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। सो जैसे ही हमने सोडियम मेटल को कट किया, वी हैव टू ड्राई इट विद अ फिल्टर पेपर। देन हम इस सोडियम मेटल को कॉटन के अंदर डालेंगे एंड इसे हम वाटर में ऐड कर देंगे। विल सी दैट द सोडियम मेटल कैचेस फायर। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इस बीकर को हाथ लगा के देखें तो हम क्या महसूस करेंगे कि दैट बीकर इज वेरी हॉट, बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी हीट निकलती है। इन रिएक्शन क्या रहती है इसकी, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and hydrogen gas is also evolved in the process. Now to check whether sodium hydroxide solution is acidic or basic, हम इसके अंदर लिटमस पेपर को ऐड करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है दैट टर्न्स टू ब्लू विच शोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जो पोटेशियम मेटल होता है उसे भी हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव एंड इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर और वाटर। सो उसकी भी क्या रिएक्शन रहती है, सेम सोडियम की तरह। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस। सो K plus H2O gives out KOH plus H2। ये जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं दीज आर नॉट बैलेंस्ड। हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्लास 9th में सीखेंगे। नेक्स्ट हम उन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, सच एज मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नीशियम मेटल है दैट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम मेटल जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया था। सो मैग्नीशियम reacts with water to form magnesium hydroxide and इस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन क्या रहेगा इसका, Mg for magnesium plus water H2O gives out MgOH twice, OH का twice, ठीक है, which is magnesium hydroxide plus H2 that is hydrogen gas. When metal reacts with water either hot or cold, it will form a metal hydroxide and hydrogen gas. But there are some other metals जो के हैं बहुत ही less reactive होते हैं, so they will react with steam and when metal reacts with steam it will form metal oxide plus hydrogen gas. इसका example क्या है, zinc. When zinc reacts with steam it will form zinc oxide plus hydrogen gas. zinc के लिए क्या symbol है, Zn. And steam is also a form of water, so we will use H2O. Zn plus H2O will give out ZnO, stands for zinc oxide plus hydrogen H2 gas. And there are some other metals जो water के साथ बिल्कुल react नहीं करते हैं, example gold, silver, copper. So next we will study about the reaction of non metals with water. जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इनफैक्ट सम ऑफ द हाईली reactive non-metals are kept under water because they do not react with it. इसका example क्या है, phosphorus. Phosphorus is kept under water so as to protect it from the action of air. Because जो फोस्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट कैचेस फायर, इसीलिए हम फोस्फोरस को एक्सपोज नहीं कर सकते, खुले में नहीं रख सकते एयर में, एंड इसीलिए उसको सेफ रखने के लिए हम उसे वाटर में रखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर वाला आपने सारा बुक से पढ़ना है। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।